Assalamu alaikum students, this is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal Campus, Science, Grade 4, Unit number 2, Lesson number 1, Lecture number 1, Plants. How do plants change and grow? General instructions. Students, bring your student's book and classwork notebook open and keep it open during lecture and write date, topic and index properly. Listen to your teacher attentively and write all the important points said by the teacher on your classwork notebooks. How do plants change and grow? Let's solve question number 1. Look at the pictures and label, and then we will discuss it later. Open page number 16. Lesson number 1. How do plants use roots and stems to grow? Page number 17. In this topic, we will discuss about the role of roots and stems, how they help the plant in its growth, and how they help the plant in taking up the nutrients and water uptake. So let us discuss first how roots help plants. Plants need roots and stems to take in and move material plants need to live and grow. Okay students, अब इस पॉइंट में जो आप लोगों को बात समझाई जा रही है वो ये है कि roots and stem both are necessary for the plants and they move plant material that is needed by the plant to live and which is necessary for the plant. Root system is often present below the ground, यानी कि जो रूट सिस्टम है प्लांट्स का उसकी जो रूट्स होती हैं वो बिलो द ग्राउंड मौजूद होती हैं, वो ग्राउंड से अबव मौजूद नहीं होती, यानी कि इन द सॉइल प्रेजेंट होंगी. Root helps plants as they keep plants stable in the ground, they store food made by the plant leaves, and they take in water and materials called minerals. Okay students, look at page number 17, paragraph number 2. The root system of a plant is often below the ground. You usually cannot see it. Roots keep the plant stable in the ground. अब इसमें जो आप लोगों को बात एक्सप्लेन की गई है वो ये है कि रूट सिस्टम जो है प्लांट्स का वो बिलो द ग्राउंड मौजूद होता है. यू कैन नॉट सी इट, एंड जो रूट्स होती हैं वो प्लांट की स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसको सॉइल में होल्ड रखती हैं. रूट स्टोर फूड मेड बाय द प्लांट्स लीव्स, और रूट्स जो हैं वो पत्तों से बनने वाली जो खुराक है उसको भी ज़ख़ीरा करती हैं या उसको स्टोर करेंगी. रूट्स आल्सो टेक इन वाटर एंड मटेरियल कार्ड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स. ओके, रूट्स जो मटेरियल या जो मिनरल्स जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनका अपटेक करते हैं और उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. और ऐसे मटेरियल जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं उसको हम मिनरल्स कहते हैं. द प्लांट गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर एंड द मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट इज एनी मटेरियल नीड बाय लिविंग थिंग्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. यानी कि एक न्यूट्रिएंट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत प्लांट्स को होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयरिंग के लिए, और एज अ एनर्जी सोर्स उसको यूज़ करेंगे. प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू लिव एंड ग्रो, और प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो कि रूट्स के ज़रिए से उन्हें मिलते हैं और रूट्स उनको सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 वेज दैट रूट्स हेल्प plants. In how many ways roots will help out the plants. तो यहाँ पे 3 ways हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप लोगों ने जस्ट उन्हीं को राइट करना है. अब जैसे कि आपके पास नंबर 1 पे लिखा है दे कीप, तो यहाँ पे आप लोग राइट करेंगे कि दे कीप द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लांट, एंड द स्टोर, दे टेक द water and minerals from the soil and transfer it to the plant parts. So first option में हम लोग राइट करेंगे they keep plants stable in the ground and store food made by the plant leaves, and third one में हम लोग राइट करेंगे they take in water and materials called the minerals. यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस की हैं सेम वही चीज़ें हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे राइट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 17 पे आपके पास है लेबल फिर ट्री. Now we are going to label it. We have numbering 1, 2 and 3. So the first numbering which is we have to label is stem, and the second one is leaves, which is green part of the plant, and the third number
is roots, which is underground part of the plant, and we have discussed about the functioning of the roots. Okay, students, memorize the keywords given on the page number 17 properly. The next subtopic which we are going to discuss is types of roots. How many types of roots? There are two types of roots. Different plants have different roots. There are two types of roots. The first one is taproot and the second one is fibrous roots. What are taproots? Taproots, these are large and grow deep into the soil toward the earth center due to the gravity. यानी कि ये large होती हैं और ये अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जो है deep into the soil grow करेंगी और ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेंगी. They take water and the nutrients from the soil and store food made by the plants. वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको सॉइल में से ये एब्जॉर्ब करेंगी और जो फूड प्लांट लीव्स के ज़रिए से बनती है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेंगे. एग्जांपल अगर इसकी हम देखें तो कैरेट्स इसकी एग्जांपल हैं. The next one is fibrous roots. These grow longer than the tape roots and spread in many directions. Fibrous roots basically are projection-like and they spread in so many directions and they grow longer than the tape roots. Fibrous roots grow near the surface to take in rainwater. Fibrous roots spread in many directions and they grow near the surface area so that they can take in rainwater when it rains. एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी तो इसमें ग्रास एंड पाइन ट्रीज आ जाएंगे हमारे पास. हाउ स्टेम हेल्प प्लांट्स, पेज नंबर 18. स्टेम सपोर्ट्स द लीव्स, फ्लावर्स एंड द फ्रूट ऑफ द प्लांट्स. यानी कि ये तीन चीज़ों को सपोर्ट करेगा. लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट को जो प्लांट में लगते हैं उनको स्टेम जो है वो होल्ड करता है, उन्हें स्टोर करता है. Stem often grow up toward the light which is the main source of the energy. यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास लाइट है और स्टेम उसी की तरफ ग्रो करेगा यानी इट ग्रोज अपवर्ड. अब यहाँ पे अगर पेज नंबर हम 18 पे देखें, पैसेज को रीड आउट करते हैं. स्टेम सपोर्ट द लीव्स, फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स. स्टेम ऑफन ग्रो अप टुवर्ड द लाइट, प्लांट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि प्लांट्स का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको यूज़ करते हुए अपनी फूड बनाते हैं और सारी उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. लाइक सिंपलेस्ट अगर हम एग्जांपल देखें, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड देन दे मेक देयर फूड. सो इट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. Most plant stem have tiny tubes that may move water and minerals from the roots to the leaves. यानी कि मिनरल्स को मूव करवाएंगे रूट से, अपवर्ड मूवमेंट उनकी करवाएंगे, अगेंस्ट द ग्रेडियंट उनको मूव करवाएंगे फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. अदर ट्यूब्स मूव फूड फ्रॉम द लीव्स टू द स्टेम एंड रूट्स. और जो दूसरी हैं वो फूड को मूव करवाएंगी लीव्स से स्टेम एंड रूट्स तक. यानी कि जो लीव्स फूड प्रिपेयर करेंगे वो फिर उनको आगे ट्रांसफर करेंगे स्टेम एंड रूट्स तक ताकि वो भी प्रॉपर्ली ग्रो कर सकें. अब स्टेम हैविंग प्लांट्स में अगर एग्जांपल हम देखें तो पंपकिन स्टेम है और वाइन्स हैं. लेट अस look at page number 18. Some stems are thin and grow along the surface of the ground. The stem of the pumpkin can grow roots and are new plants. ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने ये बात डिस्कस की गई है कि जो स्टेम है पंपकिन का वो एक नए प्लांट को ग्रो करवा सकता है. अदर स्टेम्स कॉल्ड वाइन्स ग्रो प्लांट दैट ट्रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट्स दैट सपोर्ट द प्लांट. अब जो वाइन्स होती हैं यानी कि जो बेल जैसे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो वॉल पे क्रीप करते हैं तो क्रीपिंग के दौरान वो अपने कुछ ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशलाइज में फीचर्स होते हैं जिनके ज़रिए वो उस एरिया के अराउंड अपने आप को रैप कर लेते हैं या वहाँ पे वो कोई भी जो सपोर्टिंग एरिया है वहाँ पे उसको अपने आप को रैप कर लेंगे ताकि वो ईजिली क्रीप कर सकें अलोंग द वॉल. Types of stem. The next point which we are going to discuss is types of stem. How many types of stem? Basically, there are two types of stem. The one is underground stem and the second is stem above the ground. Plant stem have different shapes, colors and sizes. They differ in shape, color and size. There are two types of stem, herbaceous stem and woody stem. Basically, herbaceous stem are green in nature and the woody stem are having bark. Some stems grow underground like potatoes. Stem below the ground can make new stem from the buds like potatoes eyes. These buds come out and form new plants. यानी कि अब यहाँ पे अगर हम देखें कि underground stem जो है, हम potatoes की example लेते हैं. Underground stem basically store the food which we can eat and we can use as a energy source.
तो अब पोटैटोज होते हैं, उनके ऊपर जो बर्ड्स बनती हैं, जो आइज बनती हैं, उनको हम उन बर्ड्स को हम पोटैटोज आइज कहते हैं। तो उनको अगर हम कट करके दोबारा से सॉइल में सो करते हैं तो उन बर्ड से नया एक प्लांट बन जाता है, यानी कि प्लांट्स की रिप्रोडक्शन भी इन बर्ड्स के जरिए से हो सकती है, और ये बेसिकली होता अंडरग्राउंड स्टेम है। सम ग्रो अबव द ग्राउंड लाइक कैक्टस, और कुछ जो होते हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट पेज नंबर 19. Types of stem. Plant stem come in many different shapes, size and colors. यानी shape, size and color differ करेंगे. Some stem grow below the ground, कुछ below the ground grow करेंगे. Other stems such as these cactus stems grow above the ground. अब cactus stem की again example आ गई कि जो कि above the ground grow करेगा. Notice how thick cactus stem can grow. अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ नोटिस उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये देखना है कि कैक्टस स्टेम जो है वो इतना थिक कैसे ग्रो करता है। कैक्टस स्टेम स्वेल अप टू स्टोर द वाटर। कैक्टस स्टेम जैसे जैसे वाटर को स्टोर करता है तो वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। कैक्टस स्टेम आर थिक एंड वैक्सी। बेसिकली ये थिक और वैक्सी नेचर का होता है। दिस कीप देम फ्रॉम लूजिंग वाटर, और इसी फीचर की वजह से जो कैक्टस स्टेम है वो वाटर के लॉस है उसको बियर भी कर सकता है और उसको डिक्रीज भी करवा सकता है। कैक्टस स्टेम हेल्प देम सर्वाइव इन अ डेजर्ट, और कैक्टस का यही स्टेम जो उसकी वैक्सी नेचर है, उसको जो थिक लेयरिंग है उसी की वजह से वो डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इट कैन बियर हार्श कंडीशंस एंड इट कैन लिव इन अ ड्राइस्ट कंडीशन. Okay, along this passage there is a diagram of cactus stem. So the first point, which is right over here, the spines are a special kind of leaves. Spines are like thorny structures होते हैं, spines होते हैं बारीक कांटे नुमा चीजें होती हैं, ठीक है जी, और ये स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होते हैं। और ये स्पाइंस क्यों डिवेल्प होते हैं प्लांट्स में, ताकि प्लांट्स जो हैं वो अपना जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस करवा सकें। मोर वाटर मेक स्टेम स्वेल आउटवर्ड। अब चूंकि बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर अंदर जा रहा है, तो प्लांट स्वेल हो जाएगा और ये आउटवर्ड मूव करेगा। थर्ड वन इज वाटर फ्रॉम रूट्स मूव अप दीज ट्यूब्स, और जो उसमें ट्यूबुलर सिस्टम है उसके ज़रिए से पानी जो है वो रूट्स में से होता हुआ अबव मूव करेगा। वाटर फ्रॉम रूट इज स्टोर्ड इन दिस एरिया, और यहाँ पे जो एरिया आपको जो है रेड सर्कल से दिखाया गया है वहाँ पे जो है वाटर स्टोर होता है, और इसी की फॉर्म में अब स्टेम जो है वो स्वेल करेगा। पार्ट्स ऑफ सम स्टेम ग्रो बिलो द ग्राउंड, कुछ जो है वो बिलो द ग्राउंड ग्रो करेंगे। जैसे अब पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पोटैटो आइज की एग्जांपल आपको दी। व्हेन यू ईट अ पोटैटो यू ईट द पार्ट ऑफ द स्टेम दैट स्टोर फूड बिलो द ग्राउंड, यानी कि जब आप पोटैटो को खाते हैं तो आप उस पोटैटो में जो स्टोर की हुई फूड है उसको आप ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं उसको, और वो एज एनर्जी सोर्स आप यूज करते हैं। स्टेम दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड कैन मेक न्यू स्टेम फ्रॉम द बर्ड्स, यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनकी अगर बर्ड्स को देखा जाए तो उनके जरिए से दोबारा से रिप्रोडक्शन हो सकती है, वो नया प्लांट बना सकते हैं। लाइक द पोटैटोज आइज, these birds grow up out of the ground and become new plants. अब यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 19 पे एक कॉलम है, सो यू हैव टू डिस्कस इट विद योर फेलोज एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ आवर लेसन। अल्लाह हाफिज।